السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری ورلڈ A.N۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اسٹوری ورلڈ A.N کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ہیبت ناک رات کا قصہ۔ وہ دونوں اندھیرے میں کھڑے کسی مدد کے منتظر تھے، جبکہ تینوں لڑکیاں گاڑی کے اندر بیٹھی باہر کھڑے حیدر اور احمر کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سمرا جو ان تینوں میں کافی نازک دل کی تھی، اس نے تو باقاعدہ خوف سے رونا شروع کر دیا تھا۔ یار سمرا، کیوں رو رہی ہو تم؟ مہک نے پیار سے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ مہک، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے خوفزدہ نگاہوں سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرنے کے بجائے اللہ کا نام لو، زیبا اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ خوف زدہ وہ دونوں بھی تھی، مگر اس وقت خود کو مضبوط کیے بیٹھی تھی۔ صادقہ بیگم کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے محسن، جس کا اکلوتا بیٹا احمر تھا۔ صادقہ بیگم کا دوسرا بیٹا فیصل تھا، جن کے ہاں ایک بیٹا حیدر اور ایک بیٹی زیبا تھی۔ سب سے چھوٹے بیٹے معین کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں، مہک اور سمرا۔ یہ سب ایک ہی ساتھ رہتے تھے اور آج قدرت کے گھر کی شادی اٹینڈ کر کے آ رہے تھے۔ قدرت ان کی برسوں پرانی ملازمہ تھی جو انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ قدرت کا اپنا گھر گاؤں میں تھا۔ اس نے بہت چاہت سے ان سب گھر والوں کو شریک ہونے کے لیے بولا تھا۔ قدرت کی حیثیت ان کے گھر ملازمہ سے زیادہ ایک فرد کی سی تھی۔ بڑوں کا اپنی مصروفیت کے باعث شریک ہونا مشکل تھا، مگر ان سب کزنز کو شوق اٹھا گاؤں جانے کا، جس پر یہ لوگ تحفے تحائف سمیت شادی میں شرکت کے لیے قدرت کے گاؤں چلے گئے، جہاں قدرت اور ان کے گھر والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ 3 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب یہ شیطانوں کا ٹولہ واپسی کے لیے رواں دوا تھا کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اف، کیا ہو گیا؟ زیبا احمر سے پوچھنے لگی۔ دیکھتا ہوں، وہ اتر کر دیکھنے لگا۔ حیدر بھی اس کے ساتھ اتر گیا۔ پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور ادھر دور تک پیٹرول پمپ بھی نہیں ہے۔ احمر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ رات کے اس پہر وہ بے سر سامانی کی حالت میں اس کچی پکی سڑک پر کھڑے تھے، جہاں چاروں جانب خوفناک اندھیرا تھا۔ غلطی ہو گئی یار، جلدی نکلنا چاہیے تھا ہمیں، احمر نے فون کی اسکرین پر سگنل تلاش کرتے ہوئے کہا۔ اب کیا کرے؟ حیدر گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا، جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ میں تبھی بول رہا تھا ان لڑکیوں سے کہ جلدی نکل جاؤ سویرے ہی گاؤں سے، تاکہ گھر جلدی پہنچ جائے۔ حیدر کو اپنی کزنز پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے وہاں سے نکلنے میں اس قدر تاخیر کر دی تھی۔ سڑک دیکھ یار، کس قدر سنسان ہے، احمر ارد گرد سناٹے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کرے یار، یہاں رات گزارنا بھی درست نہیں ہے، حیدر بولا۔ کیا ہوا احمر؟ مہک گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ یار پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور یہاں دور تک ابھی کوئی پیٹرول پمپ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اوہ، تو اب کیا ہوگا پھر؟ وہ احمر کی بات پر فکر مندی سے بولی۔ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، تم جاؤ گاڑی میں بیٹھو، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، وہ اس کو تاکید کرتے ہوئے بولا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اب ہم کیا کریں گے۔ سمرا کا فکر مندی سے برا حال ہو رہا تھا۔ زیبا اور مہک کی کیفیت بھی اس سے الگ نہ تھی، مگر وہ خود کے ساتھ اس کو بھی تسلی دے رہی تھی۔ اگر کوئی ڈاکو آ گیا یہاں، وہ تو ہمیں جان سے ہی مار دے گا، سمرا رونی صورت بناتے ہوئے بولی۔ اف، چپ کر جاؤ سمرا، زیبا اس کی بات پر دہل کر بولی۔ مجھے ڈاکوؤں سے زیادہ یہ سڑک کچھ بہت ہی عجیب اور عاصف زدہ سی لگ رہی ہے، مہک زیبا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، جس پر زیبا اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ کیا کریں یار، کہاں جائے اب؟ احمر بے چارگی سے حیدر سے بولا۔ احمر، ادھر دیکھو، حیدر پرجوش انداز میں بولا، وہ جو کافی دیر سے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
उसे सड़क के दाएं तरफ थोड़ा दूर एक पुराना सा घर नजर आया, जिसकी पहली मंजिल के छोटे से बरामदे में मध्यम सी बल्ब की रोशनी जलती नजर आई। वो अहमर को घर इशारे से दिखाते हुए बोला, हम क्यों न इस घर के मकीन से पूछे कि वो हमें आज की रात गुजारने दे। हैदर अहमर से पूछने लगा, हाँ यार चलते हैं। अहमर उसकी बात पर राजी होते हुए बोला, आ जाओ बाहर। हैदर गाड़ी के अंदर बैठी हुई लड़कियों को आवाज देते हुए बोला, जिस पर वो तीनों गाड़ी को लॉक करके उतर गई और वो सब उस घर की जानिब बढ़ गए। घर कितना असीब सदा लग रहा है ना। समरा घर की उचाड़ हालत देखते हुए आहिस्तगी से ज़ेबा और महक से बोली, तुम चुप नहीं रह सकती। महक उसकी बात पर उसको डांटते हुए बोली, समरा की बात गलत नहीं थी। घर की हालत ही ऐसी थी कि उसको देखकर खौफ महसूस हो रहा था। घर के दरवाजे का रंग जगह जगह से उखड़ चुका था और मकड़ियों ने जाले थान रखे थे, मगर इस वक्त उनके लिए सिर्फ वही घर जाए पनाह थी। हैदर ने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम हुआ कि कोई चप्पल घसीटता हुआ आ रहा है। कौन है? एक उम्र रसीदा औरत की आवाज़ गूंजी और साथ ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के थे। जुर्योज़दा चेहरे की रंगत जर्दी माइल सी थी। जी फरमाइए। वो औरत सपाट लहजे में उन पांचों को घूरते हुए बोली, क्या आज की रात हमें आपके घर में पनाह मिल सकती है? हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और अब इधर पेट्रोल मिलना मुश्किल है। अगर आप इजाज़त दें तो आज की रात क्या हम आपके घर में गुजार दें? समरा नजाजत से बोलती हुई उस औरत को देखने लगी। अगर सिर्फ बात इन दो लड़कों की होती तो मैं कभी इजाज़त नहीं देती बेटा, मगर तुम लड़कियां साथ में हो और लड़कियों का इस तरह रात भर सड़क पर रहना मुनासिब भी नहीं। आ जाओ तुम लोग अंदर। उस औरत की इजाज़त पर वो पांचों ममनू नज़रों से उस बूढ़ी औरत को देखते हुए अंदर दाखिल हो गए। घर की हालत भी कम ख़राब न थी। छोटा सा सहन था, जिस पर मिट्टी जम जाने की वजह से फर्श काला स्याह हो गया था। सामने ही छोटे छोटे दो कमरे थे, जिसमें से एक का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। सहन के कोने में पतली सी सीढ़ी थी जो ऊपर की जानिब जा रही थी। सीढ़ियों की हालत जार भी काफ़ी अबतर थी। घर की हालत देखकर लग रहा था जिसे कब से सफाई ना की गई हो। वो औरत उनको ऊपर ले गई थी, जहाँ पर दो कमरे मौजूद थे। धूल मिट्टी से अटा हुआ घर देखकर उन लोगों को घबराहट हो रही थी। तुम लोगों को कुछ चाहिए हो तो बता देना। वो उन पांचों को देखते हुए बोली, नहीं शुक्रिया आंटी। ज़ेबा मुस्कुराते हुए बोली। वो औरत बखूर अहमर का चेहरा देख रही थी। अहमर को उस औरत की नज़रों से उलझन हो रही थी। उस औरत की नज़रों को उन चारों ने भी महसूस किया था कि उस औरत की नज़रें अहमर पर ही जमी हुई थी। कुछ देर बाद वो औरत नीचे चली गई। यार कुछ अजीब आसिब सदा सा घर है। ज़ेबा कमरे के चारों तरफ निगाह दौड़ाती हुई बोली। छोटा सा कमरा था, जिस पर एक पलंग रखा था। पलंग पर बिछी चादर जो काफ़ी बदरंग और पुरानी मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरसे से उसको किसी ने इस्तेमाल ना किया हो। कमरे में एक ही बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी भी नाकाफी थी। सामने वाले कमरे का भी यही हाल था। हैदर अहमर बराबर वाले कमरे में चले गए, जबकि वो तीनों लड़कियां उस पलंग पर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने लगी कि अचानक कुछ याद आने पर समरा महक की जाने मुतवज्जो हुई, जो काफ़ी चुपचाप सी थी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? वहाँ गाड़ी में भी इतनी खामोश सी थी। मुझे पता है इसे क्या हुआ है, ज़ेबा बोली। जब से ताई ने अहमर की शादी का जिक्र छेड़ा है ना, तब से मोहतरमा की रातों की नींद उड़ गई है। ओह तो ये बात है, समरा बोली। अहमर जो किसी काम से उनके कमरे की जानिब आ रहा था, ज़ेबा की बात पर उसके कदम वही रुक से गए और एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। अम्मी ने जब शादी का उससे पूछा था तो उसके जहन में शरीक हयात का जो तस्वर आया था
वो महक का ही था, मगर उसने सोचा था कि वो पहले महक से पूछ ले कि कहीं ऐसा ना हो वो उसको पसंद नहीं करती हो, मगर उसे अब इत्मीनान था। अहमर वापस पलट रहा था कि अचानक उसकी इर्द गिर्द नुस्वानी हंसी की आवाज़ गूंजी। वो चौंकर इधर उधर देखने लगा, मगर हंसने वाला नजर नहीं आया। उसे लगा कि कोई हाथ उसके कंधे को छूते हुए गुजरा है। वो अपनी जगह परेशान खड़ा था कि हैदर की आवाज़ पर चौंका। कहाँ रह गए यार? हैदर सामने से आते हुए बोला। यार, कोई हंस रहा था। अहमर बोला, हाँ तो हंसने दो ना, तुमको क्या है? हैदर उसकी बात के जवाब में लापरवाही से बोला, अरे यार, इनके घर का ही कोई फर्द होगा। हैदर उसको तसल्ली देते हुए बोला, जिस पर अहमर हाँ में सर हिलाने लगा। अरे कितनी शदीद ठंड है। महक बेड पर बैठी अपनी ही शॉल से खुद को लपेटते हुए बोली, रात पर क्या जाग कर गुजारनी है? नींद से बेहाल ज़ेबा बोली, क्या करे, मजबूरी है। महक उसकी बात पर पूरते हुए समरा को देखने लगी, जो बेड पर बैठी हुई ऊँघ रही थी। कमरे की हालत इस कदर ख़राब थी कि ज़मीन पर बिछा कालीन भी गर्द से अटा हुआ था और पलंग की हालत भी कम खस्ता ना थी। उन तीनों ने बाकी रात इसी तरह जाग कर गुजारने का फैसला किया। बातें करते करते थोड़ी देर बाद ज़ेबा और समरा दीवार से सर ठिकाए सो चुकी थी। महक जो जाग रही थी, उसको आंख में जलन सी महसूस हुई। वो उठकर गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही गुस्ल खाने का दरवाज़ा खोला तो वॉश बेसन के पास सफ़ेद लिबास में एक लड़की को झुके पाया, जिसकी पुश्त महक की जानिब थी। महक की खौफ से चीख निकल गई, जिस पर ज़ेबा और समरा की हड़बड़ाकर आंख खुल गई। वो दोनों महक को देखने लगी, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। महक ने डरती हुई उन दोनों से कहा, वो गुस्ल खाने में कोई है, मैंने उसको देखा, कोई वहाँ खड़ा है। ज़ेबा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है महक। ज़ेबा गुस्ल खाने के अंदर झांकती हुई बोली, मैं अहमर को बुला कर लाती हूँ। महक घबरा कर कमरे से निकल गई। दस्तक की आवाज़ पर अहमर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने महक को खड़े पाया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महक की बात पर अहमर पलटकर हैदर को देखने लगा, जो बेखबर सो रहा था। वो आहिस्तगी से उठकर महक के साथ बाहर आ गया। छत पर चले। महक की फरमाइश पर वो वक्त देखने लगा। रात के 3 बज रहे थे। चलो, वो खुद उसके साथ बढ़ गया। जैसे ही अहमर ने सीढ़ी पर पैर रखा, सीढ़ी उसके कदमों के बोझ से चरचरा उठी। वो दोनों ऊपर आ गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो महक। अहमर चांद को देखते हुए बोला, सिर्फ मैं ही करती हूँ या तुम भी करते हो? महक उसके कंधों पर सर रखते हुए उससे सवाल करने लगी। मैं भी करता हूँ, तभी तो साथ हूँ। महक की बात पर वो मुस्कुराते हुए बोला, ये अहमर कहाँ गया? महक, जो अहमर की तलाश में कमरे में आई थी, परेशानी से सोचने लगी, क्योंकि अहमर कमरे में मौजूद नहीं था। हैदर, ये अहमर किधर है? वो जोर से उसे आवाज़ देते हुए पूछने लगी, जिस पर हैदर हड़बड़ाकर जाग गया। यही तो था वो। आंखें मसलते हुए हैदर बोला। फिर वो उठकर उसके साथ अहमर को देखने लगा। छत पर तो नहीं गया कहीं। हैदर को कुछ ख्याल आया तो वो दोनों छत की तरफ बढ़ गए। ये किससे बातें कर रहा है? हैदर परेशान होते हुए बोला, जहाँ अहमर को खुद से गुफ्तगू करते पाया। अहमर, किससे बोल रहे हो तुम? महक की आवाज़ पर अहमर उछल सा गया। अब वो आंखें फाड़े अपने सामने खड़े हैदर और महक को देखने लगा। क्या हुआ? यहाँ किससे बातें कर रहे थे तुम? हैदर की बात पर वो डर कर अपने बराबर देखने लगा, जहाँ अब कोई भी नहीं था, किसी से भी नहीं। वो ये बोलते हुए उनके पास आ गया। वो दोनों उसके अजीब व गरीब रवैये पर हैरान थे। ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ रही है? हैदर अहमर के चेहरे को देखते हुए पूछने लगा। कुछ नहीं, चलो यार नीचे चलते हैं। वो महक नहीं थी तो कौन थी? अहमर नीचे आकर भी सोचों में गुम था। उसे ये बात बुरी तरह से खौफजदा कर रही थी कि वो छत पर महक के नहीं किसी और के साथ था।
यार हैदर, चल निकलते हैं यहाँ से, अहमर ने गाड़ी की चाबियां जेब से निकालते हुए कहा। वो दोनों लड़कियों के कमरे में दाखिल हुए तो महक और समरा एक दूसरे से टेक लगाए ऊँग रही थी, जबकि ज़ेबा जाग रही थी। दोनों लड़कों ने इशारे से ज़ेबा को दोनों लड़कियों को उठाने को कहा और खामोशी से बाहर निकल आए। जल्दी चलो, इस पुरस्कार घर से दूर चलते हैं, हैदर ने सरगोशी के सी अंदाज में कहा तो वो तीनों सहमे सहमे अंदाज में बाहर की तरफ लपकी। जैसे ही उन्होंने सहन में कदम रखा तो वहाँ मौजूद कब्र को देखकर वो हैरान रह गए। जब वो लोग आए थे तब कब्र मौजूद नहीं थी। अभी वो इसी कश्मकश में थे कि कब्र को कैसे पलांगे कि दफातन पीछे से आवाज़ आई। अहमर को वो रात याद आ गई जब वो आखिरी बार शीज़ा से मिला था। यूनिवर्सिटी में दोनों को ही देर हो गई थी, लिहाजा अहमर ने शीज़ा को घर ड्रॉप करने की ऑफ़र दी। रास्ते में वो शीज़ा की कुर्बत से बहकने लगा तो शीज़ा और उसके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शीज़ा ने अहमर को फ़ौरन गाड़ी रोकने का कहा, मगर बदकिस्मती ये थी जैसे ही वो गुस्से से तनतनाती गाड़ी से उतरी तो दूसरी जानिब से आती तेज रफ्तार गाड़ी उसको उड़ाती ले गई। अहमर इस कदर खौफज़दा हुआ कि बिना पीछे देखे कि शीज़ा का क्या हाल है वो गाड़ी दौड़ा गया और बेचारी शीज़ा वही सड़क पर बेआसरा पड़ी तड़पती रही और मर गई। अब सहन में बाकायदा सिसकियों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। वो बूढ़ी औरत बाहर निकल आई, वो भी सारो कतार रो रही थी। मेरी बेटी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, एक यही वाहिद थी जो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। तुम्हारे बुरे रवैये की वजह से मेरी बेटी की रूह अक्सर भटकती नजर आती है। अहमर ने शीज़ा की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो बहुत सहमा हुआ था। हैदर और तीनों लड़कियों की हालत भी अबतर थी। लड़कियां तो ख़ास तौर पर खौफ से बेहाल हो रही थी। अहमर, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि मेरी बेटी भी अब यही चाहती है। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब खो बैठूं। औरत ने कहरबार नज़रों से उसे देखते हुए कहा। हैदर ने जल्दी से अहमर का हाथ पकड़ा और अहमर को आंखों से इशारा करता तेजी से बाहर की जानिब लपका। वो जल्द अज जल्द इस आसिफज़दा माहौल से निकलना चाहते थे। हैरत की बात ये थी कि गाड़ी भी फौरन स्टार्ट हो गई और अब वो तेजी से शहर की जानिब रवां दवां थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अहमर जो कि समझ रहा था कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो माजी में क्या कर चुका है, लेकिन एक तारीक रात ने सब कुछ अयां कर दिया था।